So, good morning, students. So, now today we are going to start with next unit, that is optics. क्या है optics? सबसे पहले हम यही देखते हैं. Optics is the branch of physics that deals with study of behavior and properties of light, including its interaction with matter. So इसमें हम सारा क्या पढ़ेंगे? We will discuss behavior of light and different properties of light. A broader aspect में this optics is divided in two parts. One is ray optics and other is wave optics. अब ray optics क्या है? Ray optics is based on the rectilinear propagation of light. In this ray optics, we explain the two phenomena, that is reflection and refraction, and this reflection through mirror, refraction through lens and prism. तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सारा डिस्कस करेंगे. Now wave optics, it is based on the wave nature of light. क्योंकि देखिए लाइट हैज़ अ ड्यूअल करेक्टर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. तो व्हेन वी आर टेकिंग द वेव नेचर एस्पेक्ट ऑफ लाइट, so that all will be covered in wave optics. In this, the phenomenon which we will discuss, that is interference, diffraction, polarization. So all these phenomena can be explained only and only taking into account the wave nature of light. So now the next question is visible light. Visible light क्या है? Now visible light is only a small portion of electromagnetic spectrum. You know the electromagnetic spectrum which starts from gamma rays and ends to radio waves. तो जो visible spectrum है, it is the small portion of electromagnetic spectrum of wavelengths varying from 400 nanometer to 760 nanometer. Normally you say from 4000 angstrom to 8000 angstrom. So that is the thing. तो अब इसे visible light क्यों बोलते हैं? Because human eye is sensitive to this portion of electromagnetic spectrum. बेटा हम इस लाइट के अंदर देख सकते हैं. This light makes in us the sensation of sight. क्या है light? Light क्या है? It's a property which makes in us sensation of sight. Visible light है, इसमें हमें दिखाई देता है. That means our human eye is sensitive to this the wavelength portion. And now next is, what is ray of light? Ray of light क्या है? Straight line path along which light will travel. अब मान लीजिए I am saying कि light is traveling like this. So this is known as ray of light. I am saying straight path. I am not saying the straight path, it should be only the horizontal straight line. ठीक है ना? So that means the path along which the light will travel, straight path. Straight path along which light will travel, that is known as ray of light. और उसके बाद आता है what is beam of light. तो beam of light में when you are taking a bunch of parallel light like this, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एक beam of light आ जाएगी. तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्योंकि पूरे इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद रे ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स में हम सारे में कहेंगे रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट. तो यू शुड नो कि रे ऑफ लाइट किसको बोल रहा है, कि मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके अलोंग लाइट जो है ट्रेवल कर रही है. वी नो वी आर कंसिडरिंग in this ray optics
rectilinear propagation of light. What is the meaning of rectilinear propagation of light? It means that light travels along a straight line path. आपने लोअर क्लासेस में आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं कि देखो भाई, ये आपने कैंडल ले ली और एक आपने बिल्कुल लाइन में होल करके रखा है, तो उस कैंडल की इमेज वहाँ बन रही है। अब अगर होल को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हो तो आपको कैंडल की लाइट की इमेज वहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहा। अब एक्चुअली क्यों लाइट हमें लग रहा है कि ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में है। किस ऑर्डर में है? 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। और जो डेली लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, साइज ऑफ ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स इज वेरी लार्ज as compared to this wavelength of light. So in daily life, light travels along the straight line path. अब इसमें first of all we will discuss reflection of light. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what is reflection of light और कहाँ से होती है। आप एक चीज नोटिस करिए, एक ग्लास ही है, आप मिरर में से अपना फेस देख पाते हो ना? तो क्यों देख पाते हो, कभी सोचा? और एक खिड़की है, उसमें भी ग्लास लगा है, तो उसमें तो आप नहीं देख पाते अपना फेस। एक्चुअली कब आप अपना फेस देख पाओगे? जब रेज रिफ्लेक्ट होकर के, जो आप देखो कैसे इमेज बनती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करी, अब आगे जाकर जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करी, अब एक तो हो सकता है वो सरफेस से आगे निकल जाए, एक है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के टर्न बैक करके हमारे आइज तक पहुँचे। अब अगर हमारी आइज तक पहुँचेंगी तब हम उसकी इमेज को देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। इसमें लाइट बेंड हो रही है। ये देखिए, ये मैंने एक सरफेस लिया और ये मैं इसका इस तरीके से ले रही हूँ। इट्स आंटी की, ये मैं क्या शो कर रही हूँ कि दूसरी साइड जो है ओपेक है। ओपेक मीन्स लाइट विल नॉट ट्रेवल थ्रू दैट। तो अब अगर ये रे ऑफ लाइट यूं गई ऐसे, तो वो वापस कैसे आ रही है? इस तरफ को। तो इसका मतलब क्या है? बेंड तो हो गई ना। ऐसे रेज आ रही थी तो उसने, अगर ये मिरर रास्ते में ना आती तो रे ने तो आगे निकल जाना था, लेकिन इस मिरर ने उसके रास्ते को बदल दिया। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या कह रहे हैं? फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, पहली चीज। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कह रहे हैं? बैक इनटू सेम मीडियम, कि उसी मीडियम में रे वापस आ रही है। और ये रिफ्लेक्शन किस तरह से, किस सरफेस से होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू मिरर। और इसमें जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस भी हो सकता है और स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। जब मैं ये यूं लाइन ये बना रही हूँ, दैट मीन्स इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर से होगी, बाहर ओपेक मैंने शो कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब भी होती है एक पर्टिकुलर लॉस के अकॉर्डिंगली होगी। इसमें अब ये रे ए पॉइंट से चली, ओ पॉइंट पर जाकर के ये मिरर पे स्ट्राइक करी, तो ए ओ क्या है? दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होकर के जो अलोंग ओ बी पाथ जा रही है, तो ओ बी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लगा रही हूँ
और जो मैंने लाइन लगाई है वो मैंने लगाया है परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। तो इस रे को जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। Now the angle between incident ray and normal is known as I, that is angle of incidence. Angle between normal ray and reflected ray is known as R, that is angle of reflection. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली चीज हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये बेटे तीनों किस में है, एक ही प्लेन के अंदर हैं। अगर आप मान लीजिए दीवार की बात कर रहे हो तो वो सारी उसी के अकॉर्डिंगली आएंगे। इन द प्लेन मीन्स इट विल बी आइदर एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। सो इसमें पहला क्या बनता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं ये आएंगे कि जब भी रिफ्लेक्शन होनी है लॉज विल बी, दीज लॉज विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ प्लेन मिरर एज वेल एज फॉर स्फेरिकल मिरर। अब हम इसमें पहले देखते हैं कि हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्लेन मिरर। सो वी टॉक अबाउट reflection through plane mirror, ये तो ली। और फिर हम उसमें ये देखेंगे कि how image is formed, how image is formed through plane mirror। जब रिफ्लेक्शन हो गई तो उससे क्या होनी है, इमेज फॉर्म होनी है। अब इसमें देखो ऐसे लेंगे, ये आपने प्लेन मिरर ले लिया, ठीक हो गया। यहां रही ऑब्जेक्ट ओ, सो ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब इस ऑब्जेक्ट की आप इमेज देखना चाहते हो तो बेटा हमेशा याद रखिए कि इमेज को जब आपने देखना है तो मिनिमम 2 rays are required। और हम ये देखेंगे कि whether these 2 rays after reflection will actually meet or appear to meet। If the 2 rays after reflection will actually meet then real image is formed, if they appear to meet then virtual image is formed। अब देखिए हमने इसमें एक लिया ये रे ऑफ लाइट O से ऐसे गई इस पॉइंट A के ऊपर, तो ये रे क्या कर रही है, दिस रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, नॉर्मल इंसिडेंस है अलोंग द नॉर्मल। तो इस केस में बेटा अगर आप ध्यान से देखो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आई, नेचुरली वैल्यू ऑफ आई विल बी 0 डिग्री। तो अब आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर आई 0 है दैट मीन्स आर शुड ऑल्सो बी 0 डिग्री, it means that this ray will retrace its path। तो हमेशा ये एक रूल है जो बेटे याद रखना है। क्या याद रखना है, whenever ray of light strikes the mirror normally then it will retrace its path after reflection। ये एक रूल बन गया। क्या रूल बना कि ray of light strikes normally the mirror and after reflection it retraces its path। और रीजन आपको समझा दिया। अब दूसरी रे O से यूं B की तरफ गई B पॉइंट पे, तो नेचुरली ये रे बेटा रिफ्लेक्ट होकर के इधर को जाएगी। अब 2 रेज O पॉइंट से चली, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक का पाथ है A से O की तरफ, दूसरे का पाथ है B से C की तरफ। सो दैट मीन्स 1 रे इज दिस एंड अनदर रे इज दिस। अब इस साइड पर तो
ये डाइवर्ज कर रही हैं, दे विल नेवर मीट, कभी भी नहीं मिलेंगे. बट if you will produce these two rays in the backward direction like this, so they appear to meet at this very point I. एक्चुअल में नहीं है, इसलिए मैंने इन लाइंस को क्या शो किया, डॉटेड. डॉटेड का मतलब है कि वी आर प्रोड्यूसिंग दैम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो सिंस दीज टू रेज आर डाइवर्जेंट रेज, so if you produce them in the backward direction, they will appear to meet at this point I. तो आपके पास क्या आ गया, I is virtual image of object. तो इसलिए अब अगर हम देखें कि व्हाट इज नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो प्लेन मिरर से जो इमेज की नेचर है वो आपके पास बनी वर्चुअल इमेज, एंड दिस इमेज विल बी ऑफ सेम साइज. जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का होगा, लेकिन वर्चुअल होगी. और इसमें वर्चुअल होने की वजह से इसमें क्या होगा, लेटरल इन्वर्शन. आप बच्चे ध्यान से देखो, आप जब शीशे में से देखते हो वो आपका प्लेन मिरर होता है, तो आपको जो आपका नज़र आ रही है इमेज थ्रू मिरर, तो उसमें राइट साइड लेफ्ट नज़र आती है, लेफ्ट राइट नज़र आती है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्शन. तो नेचर क्या है, वर्चुअल ऑफ सेम साइज एंड हैविंग लेटरल इन्वर्शन. लेटरल मीन्स राइट हैंड साइड विल बी लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी राइट. अब नेचर के बाद आ जाता है पोजीशन, कहाँ बनेगी. तो इमेज इज फॉर्म्ड as far behind the mirror as object is in front of it. Object is in front of it. यानी कि इसमें बेटे OA डिस्टेंस AI डिस्टेंस के बराबर होगा. ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है. आप मिरर से अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपको मिरर के पीछे जो अपनी इमेज नजर आएगी वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही नजर आएगी. अब अगर आप उसके मिरर के पास चले जाते हो, आप 4 सेंटीमीटर पे चले गए तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर पे नजर आएगी. तो यानी कि अगर पहले ये टोटल डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर का था, जब ऑब्जेक्ट इधर हुई इमेज इधर, तो ये कितना रह गया, 8 सेंटीमीटर रह गया. तो यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर्स की हो गई. तो ये बेटे हमने इसमें स्टडी किया कि जी ये आपके पास किस तरह का आ रहा है. तो ये इमेज कैसी. सो नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस प्लेन मिरर. कि इसमें अब जो मैं आपको बात कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लेन मिरर, के प्लेन मिरर में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं बेटा आपको किस तरीके से आ सकते हैं और उन सभी चीज़ों का क्या मीनिंग है, जो मैं एक एक पॉइंट पढ़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. दैट इज़ द 1 मार्क क्वेश्चन. सबसे पहले ये आपके पास है प्लेन मिरर. तो बेटा एक चीज और ये ऐसे है, तो ये इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये इंसिडेंट रे ने किसके साथ बनाया है, नॉर्मल के साथ बनाया है. अब अगर आप ये एंगल लो, ये वाला, तो ये इंसिडेंट रे किसके साथ बनाएगी, हाँ जी, ये इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा ये किसके साथ बनेगा, ये एंगल वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बनाएगी. और जो एंगल वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्लैम्सिंग एंगल. दिस इज ग्लैम्सिंग एंगल.
So angle which incident ray makes with reflecting surface. तो प्लीज अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ध्यान से देख लेना. अब अगर मैं आपको कह देती हूँ कि रे स्ट्राइक्स द मिरर एट एन ग्लैम्सिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो बच्चे आपके पास आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा? दैट विल बी 60 डिग्री. ये नहीं देखा कि भी इंसिडेंट रे बोला है, लिख दो 30. अरे ये देखो कि इंसिडेंट रे ने एंगल किसके साथ बनाया है. इफ इट इज गिवन दैट इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो तो ये एंगल हुआ ना. तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा? 90 माइनस 30, दैट इज इट विल बी 60 डिग्री. ठीक है. अब उसके बाद सेकेंड चीज इसमें क्या है कि इफ प्लेन मिरर is rotated through angle theta, then reflected ray is turned through या rotated through to theta. देखो ना बेटा, ये कहने का मतलब है कि आपके पास ये मिरर थी, तो अब अगर आपने ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे पास बनी है ना. अब इसमें ये जो एंगल आपके पास आया मिरर के साथ इस तरह से था. अब अगर तुम मिरर को रोटेट कर रहे हो, अब मिरर ये जो तुमने ले ली बेटे इस पोजीशन में ले ली ऐसे, तो तुमने मिरर को कितने एंगल से रोटेट कर दिया? थीटा एंगल से रोटेट कर दिया. तो अब नेचुरली बेटे आपका अगर पहले एंगल आई था, तो अब एंगल कितना हो गया? आई प्लस थीटा. तो नेचुरली डबल हो जाएगा कि नहीं? अगर इधर भी आई प्लस थीटा है तो ये भी आई प्लस थीटा हुआ, तो एक थीटा ये हुआ, एक थीटा यहाँ से हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न होगी? 2 थीटा से. तो ये प्लेन मिरर इज टर्न थ्रू 5 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड रे इज टर्न थ्रू 10 डिग्री. ये इसमें पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज उसमें आपके पास जितना टर्न वहाँ से मिरर से हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आपसे मैं ये पूछूं कि मैं आपसे ऐसे पूछती हूँ, लेट अस से मैं आपसे ये पूछूं, अ रे ऑफ लाइट strikes the mirror with the angle of incidence I. ठीक है. Calculate deviation produced by the mirror. Calculate deviation produced by the mirror. तो है भाई, मिरर भी डेविएट. आपको हो गया, हमें तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है प्रिज्म में ही पता था, मिरर में भी हो सकता है. कैसे कि देखो, आपने ये प्लेन मिरर ले ली, ये आपने इंसिडेंट रे ली है, और ये आपके पास आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है. अब ये इंसिडेंट रे है बेटा, अगर ये रास्ते में मिरर ना आती तो इस रे ने ऐसे ही आना था ना, है ना. लेकिन अब मिरर ने इसके पाथ को यूं टर्न इधर को कर दिया, तो नेचुरली ये आर आई के बराबर आ गए. ऐसे ही किया ना. तो इसने इसके पाथ को डेविएट किया कि नहीं? विदाउट मिरर यूं जानी थी, लेकिन मिरर ने इसके पाथ को यूं कर दिया. सो व्हाट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन? सो दिस एंगल डेल्टा. So that means the angle between incident ray and
रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कौन सी ले ली? विच इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब ये एंगल डेल्टा इन टर्म्स ऑफ आई निकालना ना, मैंने तो आई दी है। अब आप देखो डेल्टा एंगल किसके बराबर है? 180। ये टोटल 180 है माइनस आई प्लस आर। यही है ना बेटा कि ये आई ये आर, या आप ऐसे कह लो कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज 180। चलो ये तो सीधा नजर आ रहा है ना, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज 180, तो डेल्टा इज 180 माइनस आई प्लस आर, तो दिस विल बिकम माइनस 180 माइनस 2i बिकॉज r इज इक्वल टू आई। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन गया आपके पास? एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास आ गया 180 माइनस 2i। अब इसी तरह से सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि आप सोचते ही नहीं कि भी है, प्लेन मिरर में भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट प्लेन मिरर में लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। किसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। मल्टीपल रिफ्लेक्शन किस तरीके से कि जैसे सपोज कर लो आपने ये एक मिरर लिया, ठीक है, और ये दूसरी मिरर है ऐसे, and these two mirrors are inclined to each other at an angle theta। अब मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट O है, क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट O से रे ऑफ लाइट चली, ऐसे गई, ठीक है, ये इधर ऐसे इसका नॉर्मल है, ठीक है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर को ऐसे कर गई। अब यहाँ किया तो इधर को फिर जो है आपका नॉर्मल के हिसाब से हो गई, तो इसमें हो सकता है ये रे ऐसे निकल जाए, है ना? तो किस तरीके को जा रही है, कैसे है? सो डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन द टू मिरर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस। कि एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जब लाइट दूसरे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सो यानी कि एक के रिफ्लेक्टेड रे दूसरे की इंसिडेंट रे बन रही है, तो इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी। तो अब इसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं अबाउट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड? तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 by theta if 360 by theta is odd, and it is 360 by theta minus 1 if 360 by theta is even। एग्जाम्पल देखो कि मान लो आपके पास इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 30 डिग्री, दोनों मिरर्स के बीच में। तो अब आपके पास 360 by 30 क्या बन गया बेटा? 12। तो 12 इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी? 12 माइनस 1 दैट इज 11। अब मान लो सेकेंड सिचुएशन, थीटा इज 40 डिग्री, तो आपके पास 360 by 40 इज 9, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? 9। नेचुरली बेटा कि डिफरेंट एंगल्स पे करके अगर एक बार हम चेक कर ले और उससे फिर रूल्स बन जाते हैं। और अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो बात ये हो गई कि जो भी नंबर ऑफ इमेजेस आनी है वो ऑड नंबर ही आना है ना? ये चीज़ दिमाग में रखो। आप कहोगे हमें तो भूल जाता है किसके साथ -1 लगाना है। अरे बड़ी सीधी सी बात है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑड आना चाहिए। तो फिर क्लियर हो गया कि अगर वो सीधा ऑड आ रहा है तो ठीक है भाई, अगर इवन आ रहा है तो -1 कर दो। तो हमने यही कहा कि नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 by theta if 360 by theta is odd, and 360 by theta minus 1 if 360 by theta is even। अब मान लीजिए स्पेशल सिचुएशन कि भाई थीटा तो 0 डिग्री है, यानी कि हमने जो दो प्लेन मिरर्स हैं वो यूं रख दिए। अब क्या होगा? अब तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती जाएगी। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, रे आपने यूं भेजी है ना, ऐसे गई रे,
ये इधर को चलेगी, जाके इस पे ऐसे स्ट्राइक की, ठीक, यहाँ से गई, आगे इधर को निकल गई। अब ये रे है, इधर को आएगी, ठीक है, यहाँ से अब गई तो इधर को गई है। अब अगर ये है तो ये इधर को आ जाएगी। तो इस तरीके से इसमें तो भैया नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएंगी डिपेंडिंग। अब ये देखो, आपने एक चीज नोटिस की कि मेरे को इसको ऐसे करना जा रहा है, दैट मीन्स आपका फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा। इनफाइनाइट, अब अगर हम इसमें वैसे देखें तो n विल बी इन्फिनिटी बिकॉज 360/0 दैट इज इन्फिनिटी। सो इसीलिए आप जब जाते हो, कई बार आपने देखा होगा टेम्पल के अंदर एक आपके जो भी अंदर भगवान की मूर्ति है, आप उसको देखते हो तो वो आखिर तक, जहाँ तक आप देखते हो, नजर आ रही है। और ये आप अपने घर में बैठ करना सिंपल, दो आपके पास घर में प्लेन मिरर्स तो होते ही हैं, दोनों को पैरेलल रख के कोई चीज बीच में रख लेना। अब जहां तक आपकी नजर जाएगी थ्रू दोज मिरर्स, ऐसे नहीं नजर ऐसे देखनी है, कहाँ से देखना है, थ्रू द मिरर, यहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इमेजेस नजर आएंगी। क्योंकि ये देखो, अगर मिरर ही यहाँ तक रहेगी तो उतनी इमेज बनेगी ना। तो दैट मीन्स कि when two plane mirrors are placed parallel to each other, then image formed will be infinite. Infinite image इसमें हमारे पास बन जाएंगी। अब उसके बाद है कि ब्राइटनेस ऑफ इमेज किसके ऊपर डिपेंड करती है। ब्राइटनेस ऑफ इमेज बेटा हमेशा डिपेंड करेगी कि कितना एरिया एल्यूमिनेट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि आपके पास अगर एक प्लेन मिरर है और आप आधा उसको कवर कर देते हो, ये नहीं कि आपको इमेज नज़र नहीं आएगी, इमेज पूरी नज़र आएगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो इसका मतलब ब्राइटनेस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है ब्राइटनेस? दैट डिपेंड्स अपॉन लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। जितना लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ज़्यादा होगा उतनी ब्राइटनेस जो है इमेज की वो भी ज़्यादा आएगी। और अब मैंने एक जो पॉइंट आपको अभी बताया था, अब इसमें हम ये कहें कि अगर ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूव्ड टुवर्ड्स मिरर विद स्पीड v, ठीक है, तो इमेज कैसे मूव करेगी? तो इमेज हाँ भी कैसे करेगी? देन इमेज विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स मिरर with the same speed। बेटा तुम्हें बताया नहीं था मैंने अभी कि भाई जी अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर पे है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए 4 सेंटीमीटर पे तो इमेज भी यहाँ आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो कितनी हो जाएगी? हाँ जी, दैट विल बिकम 2v। बेटा अगर 1 सेंटीमीटर इधर मूव की ऑब्जेक्ट, इमेज भी 1 सेंटीमीटर मूव की, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो 10 की बजाय क्या रह गया? 8। सो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? वो 2v हो जाएगी। और उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मान लीजिए आप एक मिरर में से अपना फुल इमेज व्यू करना चाहते हो, फुल साइज इमेज, तो उसके लिए कितनी हाइट मिरर की लेनी जरूरी है? कितनी हाइट ले? सो टू व्यू फुल साइज इमेज, तो उसके लिए बेटा याद रखो height of mirror should be half of
हाइट ऑफ पर्सन। अगर पर्सन की हाइट 1 मीटर है तो अगर आपके पास मिरर 50 सेंटीमीटर हाइट की होगी तो आप उसमें से फुल साइज अपना व्यू जो है वो देख पाओगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सपोज कि आप जो व्यू कर रहे हो, आप एक थिक मिरर से व्यू कर रहे हो। ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू थिक मिरर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू थिक मिरर, मैं ये नहीं कह रही 2 मिरर्स लिए हैं, मिरर एक ही है पर थिक मिरर है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी सीन। क्योंकि बेटा उसमें भी जब थिकनेस इतनी ज़्यादा है तो डिफरेंट पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, यहाँ से भी रे रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, उसके हिसाब से इमेज बनती जाएगी। सो नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन थ्रू थिक मिरर एंड दैट इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये आपने आज जो सारा हमने पढ़ा, हमने स्टडी किया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बेसिक रिफ्लेक्शन होती क्या है, और उसके बाद हमने देखा हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें एक ही बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरी बात हमने इसमें क्या कही है कि व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली then it retraces its path, because if I is 0 then R will also be 0। और उसके बाद हमने इसमें डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो कि एक एक नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट tomorrow we will discuss about reflection through spherical reflecting surface. Thank you.